چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی کیا برکتیں ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کھولا، اس کی 100 آیات کی تلاوت کی، تو اللہ عز و جل اسے تمام دنیا کے لوگوں کے عمل جیسی بلندی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں اور اس طرح کی پیاری پیاری فضیلتوں سے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیں۔ میرا نام عباد ہے۔ ماشاء اللہ، عباد نام ہے آپ کا، اور آپ کا نام؟ میرا نام بلال ہے۔ بلال، ماشاء اللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ، ارے واہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا نام ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ حماد۔ اور آپ کا نام؟ واصف۔ واصف، ماشاء اللہ، بہت اچھا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں میں آپ کو ایک ایسی دعا پڑھاتا ہوں جس دعا کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے ملتی جلتی آواز والے حروف میں سے کچھ کے درمیان فرق کرنا سیکھتے ہیں۔ تو آج کے حروف کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ حروف دوہرا لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں پڑھے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ہمارے 2 حروف تھے، ایک حرف ہا اور دوسرا حرف ہا۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے نچلے حصے سے آئے گی، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے آئے گی، یعنی اسے ہم پڑھیں گے ہا، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے، ہا اور اسے پڑھیں گے ہا۔ ہا
माशाअल्लाह। तो आज भी हमारे पास दो हरूफ हैं, एक हरफ काफ और दूसरा हरफ कौफ। जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे, और जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। यानी इसे हम पढ़ेंगे काफ। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए, काफ काफ। काफ और जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे कौफ। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए, कौफ कौफ। कौफ। समझ में आया बच्चों? जी। तो इसी के साथ आज के हमारे हरूफ मुकम्मल हुए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आयत की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम सूरे हुमज़ा की 6 आयत सीख चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम 7वीं आयत को सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद हम अपनी आयत पढ़ना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालहु वअद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराका मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला हर्फ है हमजा। इस हमजा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जबर। क्या कहते हैं? ज़बर। और इस हमजा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? ज़ेर। और इस हमजा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। जबर, ज़बर जेर, ज़ेर पेश। पेश। जबर, जेर और पेश को हम हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। अब जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं। अब मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में है कि मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। यानी हम इसे खींच कर आ नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह झटका देकर आ भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बगैर खींचे, बगैर झटका दिए इस तरह पढ़ेंगे। हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ। समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इसे मैंने कहा हमजा, तो प्यारे बच्चों ये लिखा तो अलिफ हुआ है। इसकी वजह ये है कि अलिफ पर जब कोई हरकत ना हो तो उसे हम अलिफ ही कहते हैं, लेकिन जब उस पर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ नहीं कहलाता, बल्कि उसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। जी हाँ। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। और इस लाम पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तजदीद। क्या कहते हैं? तजदीद। और जिस हर्फ पर तजदीद हो उसे हम कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। जैसा कि यहाँ लाम पर तजदीद है तो इसे हम कहेंगे मुशद्दद। अब तजदीद वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि तजदीद वाले हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर तजदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पिछले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। क्या है? ता। और ता के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। कौन सी हरकत है? ज़ेर। फिर इसके बाद कौन सा हर्फ है? या। कौन सा हर्फ है? या। प्यारे बच्चों या जो है ये हुरूफ मद्दा में से है। किन में से है? उसपे मद्दा। और हुरूफ मद्दा 3 है। एक है अलिफ, आप भी मेरे साथ मिलकर दोहराइए, अलिफ, अलिफ वाव, वाव या। या। अलिफ, अलिफ वाव, वाव या। या। अब हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब, तो इसके बारे में ये है कि अलिफ से पहले अगर जबर हो तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा। और या साकिन से पहले जेर हो तो वहां पर या मद्दा होगा। क्या होगा? या मद्दा। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। वाव मद्दा, वाव मद्दा। या मद्दा। या मद्दा। अब हुरूफ मद्दा को हम पढ़ेंगे किस तरह,
तो इसके बारे में ये है कि हुरूफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींच कर पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर। तो यहाँ पर या मद्दा है, यानी या साकिन से पहले जेर आ रहा है, तो यहाँ पर या मद्दा होगा, तो इसे हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसकी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आप भी मेरे साथ मिलकर हिज्जे कीजिए और मदनी चैनल के नाजरीन आप भी हमारे साथ मिलकर हिज्जे कीजिए। पढ़िए, हमजा लाम जबर अल, हमजा लाम ज़बर अल, लाम जबर ला, लाम ज़बर ला, अल्लाह, अल्लाह, ता या जेर ती, ता या ज़ेर ती, अल्लती। अल्लती। समझ में आई बच्चों आपको हिज्जे? जी। तो मुझे कौन सुनाएगा इसकी हिज्जे कर कर? जी बिलाल भाई, आप जरा इस लफ्ज की हिज्जे कर कर बताइए। हमजा लाम जबर अल, लाम जबर ला, अल्लाह, ता या जेर ती, अल्लती। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने अदायगी की, लेकिन बेटा यहाँ पर या मद्दा हो रहा है तो इसे हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा दोबारा से पढ़कर बताएं। अल्लती। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से अदायगी की आपने। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ क्या है? ता। प्यारे बच्चों, ता उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है ता और दूसरा हर्फ है त्वा, जैसा कि यहाँ पर भी आ रहा है। एक हर्फ है ता और दूसरा हर्फ है त्वा। जब हम ता की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक यानी पतला कर कर पढ़ेंगे। और जब हम त्वा की अदायगी करेंगे तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। यानी इसे हम पढ़ेंगे ता और इसे पढ़ेंगे त्वा। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। समझ में आया? जी। तो यहाँ पर ता पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर के बगैर किस तरह पढ़ेंगे? झटका दिए। जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है त्वा, और त्वा पर क्या बना हुआ है? तशदीद। और तजदीद वाले हर्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हम त्वा को एक मरतबा ता से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। और लाम के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। कौन सी हरकत है? ज़ेर। और जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, तो यहाँ भी हम लाम को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। क्या है? आइन। और आइन भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमजा। जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। यानी इसे हम पढ़ेंगे आइन जबर आ और इसे पढ़ेंगे हमजा जबर आ। फर्क समझ में आया बच्चों? तो आप में से कौन बताएगा कि आइन की अदायगी कहाँ से होगी? जी अबू हुरैरा भाई, आप बताइए कि आइन की अदायगी कहाँ से होगी? आइन की अदायगी हलक के दरमियानी हिस्से से होगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से अदायगी की आपने। जी अब्दुल्ला भाई, आप बताइए कि हमजा की अदायगी कहाँ से होगी? हमजा की अदायगी हलक के निचले हिस्से से होगी। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। अब जरा इसकी अदायगी कर कर भी बताइए। हमजा जबर आ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से अदायगी की आपने। अब यहाँ पर आइन पर कौन सी हरकत है? पेश। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? किस तरह पढ़ेंगे? जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम आइन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज भी मुकम्मल हुआ। आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ मिलकर हिज्जे कीजिए और मदनी चैनल के नाजरीन आप भी हमारे साथ हिज्जे करने में शामिल रहिए। ता त्वा जबर त्वा, त्वा जबर त्वा, तत त्वा, लाम जेर ली, तत त्वाली, आइन पेश उ, तत त्वाली उ। माशाअल्लाह, आपको हिज्जे समझ में आई? फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। क्या है? आइन। और आइन पर कौन सी हरकत है? जबर।
और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो यहाँ आइन को भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम, और लाम पर भी जबर है तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। और लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर जज़म है तो इसे हम इससे पिछले वाले मुतहर्रिक लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा, और हमजा पर कौन सी हरकत है? जबर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। माशाअल्लाह, आपको तो ये वाला कायदा बहुत अच्छे अंदाज में याद हो गया है। तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है फा। क्या है? और फा पर क्या है? जज़म। जज़म। क्या है? जज़म। और जज़म वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो कौन बताएगा? जी अब्दुल्ला भाई आप बताइए। जज़म वाले हुर्फ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। लेकिन बेटा हम हुर्फ नहीं कहते, जब एक हो तो उसे हम हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ। यानी जज़म वाले हर्फ को हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा, और हमजा के नीचे कौन सी हरकत है? और उसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल, और दाल पर कौन सी हरकत है? जबर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता, और ता के नीचे कौन सी हरकत है? जबर और जेर को हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है गोलता, और गोलता के नीचे कौन सी हरकत है? जेर। और जबर और जेर को हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमजा, दाल और गोलता को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज भी मुकम्मल हुआ। आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, लाम लाम ज़बर लल, अलल अलल, हमजा फा ज़बर अफ, हमज़ा फा ज़बर अफ, अलल अफ, अलल अफ, हमजा जेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, अलल अफ ई, अलल अफ ई, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, अलल अफ इदा, अलल अफ इदा, ता जेर ती, ता ज़ेर ती, अलल अफ इदती। अलल अफ इदती। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये गोल दायरे का निशान जो आप देख रहे हैं ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है। किस चीज का निशान है? आयत के मुकम्मल होने का निशान है। किस चीज का निशान है? आयत के मुकम्मल होने का निशान है। जी हाँ, आयत के मुकम्मल होने का निशान है। और जहां भी ये निशान हो और इससे पहले अगर गोल ता हो तो उसे हम वक्फ में हा साकिन से बदल देंगे। यानी इस ता को हम ता नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा साकिन से बदल कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। जी। यानी इसे हम पढ़ेंगे अलल अफ इदा। अलल अफ इदा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अब आइए हम मिलकर इस आयत को दोहरा लेते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस आयत को पढ़ने में शरीक रहिए। पढ़िए अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा। अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर यूनुस है और मैं अपने सेगमेंट जिक्र नेमत में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपको आगाह करने जा रहा हूँ वो है कश्ती, बहरी जहाज। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कश्ती एक ऐसी सवारी है जिस पर सवार होकर पानी पर सफ़र किया जा सकता है। कश्तियों को हम दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक बोट और दूसरा शिप यानी बहरी जहाज। कश्ती छोटी होती है जबकि जहाज बड़े होते हैं। कुछ कश्तियाँ सेल्स के जरिए चलती हैं जिनको बादबान कहते हैं, और कुछ कश्तियाँ ऑर्स यानी चप्पू के जरिए चलती हैं, और जबकि कुछ कश्तियों में तो मोटर्स लगी होती हैं। ज़्यादातर कश्तियाँ लकड़ी से बनी हुई होती हैं
जिन का कुछ हिस्सा स्टील, एल्युमिनियम जैसे मेटल से तैयार किया जाता है। जहाज और कश्तियाँ दो ऐसी कदीम तरीन दरियाफ्त हैं जिन्हें हजारों साल पहले बनाया गया था। कुछ कश्तियाँ सैर के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि सेल बोट्स, यार्ड्स और क्रूज शिप्स। दूसरे टाइप की बोट्स या शिप्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि फेरीज और वाटर टैक्सीज। और कुछ कश्तियाँ तो तिजारत के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर वगैरह। फिशिंग के लिए छोटे फिशिंग बोट्स और बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि जंग के लिए जंगी बहरी जहाज और सबमरीन इस्तेमाल होती हैं, और ये सबमरीन्स पानी के अंदर तैर सकती हैं। इन तमाम मकासद के लिए लोग बहरी जहाज़ों और कश्तियों को इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर में तो कश्तियाँ और बहरी जहाज एडवांस टेक्नोलॉजी और दीगर मटेरियल से तैयार किए जा रहे हैं, जबकि कदीम जमाने के लोग तख्तों को जोड़कर इसके दरमियान की खाली जगहों में पौधे, टहनियों और पत्तों को भर कर कश्ती या बहरी जहाज बना लेते थे। पानी पर तैरने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है उसे वाटरक्राफ्ट कहते हैं। बड़े वाटरक्राफ्ट में आमतौर पर तो बहरी जहाज या शिप शामिल होती हैं, जबकि छोटे वाटरक्राफ्ट में कश्तियाँ और बोट शामिल होती हैं। इनको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो पानी के ऊपर बआसानी तैर सके, चाहे वो दरिया हो, झील हो या समंदर। कुछ कश्तियाँ इंसानी ताकत से चलाई जाती हैं, जिनमें कैक्स, कैनोस और गोंडोला शामिल हैं। बादबानी कश्तियाँ बादबान के जरिए एक खास अंदाज में हवा की मदद से चलाई जाती हैं। बादबानी कश्तियाँ असल में जहाज से छोटी होती हैं। इसके अलावा मोटर बोट्स इंजन से चलाई जाती हैं। जहाज और कश्ती की मेन मरकजी बॉडी को हुल कहते हैं। जहाज की दो साइड्स होती हैं, एक पोर्ट साइड और दूसरी स्टार बोर्ड साइड। जहाज और कश्ती के अगले हिस्से को बो कहते हैं, और बो के बिल्कुल अपोजिट साइड यानी कश्ती के पिछले हिस्से को स्टर्न कहते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बोट्स और शिप के साथ साथ यार्ड्स का जिक्र भी सुना होगा। आइए हम आपको यार्ड्स के बारे में बताते चलें। यार्ड्स की लंबाई तकरीबन 7 मीटर तक होती है। यार्ड्स ना ही कश्ती में शुमार होता है, ना ही बहरी जहाज में। असल में यार्ड्स तेज रफ्तारी और सैरो तफरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यार्ड्स का लफ्ज हॉलैंड की जुबान से लिया गया है, जिसका मतलब रोशनी है। हॉलैंड की नेवी इस तेज रफ्तारियात को पायरेट्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे सैरो तफरी के लिए इस्तेमाल करने लगे। जो यार्ड 70 मीटर बड़ा हो उसे सुपर यार्ड्स या फिर मेगा यार्ड्स कहते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर शिप सिम्फनी ऑफ द सीज है, जिसकी लंबाई तकरीबन 361 मीटर है और ये 2015 में तामीर हुआ। ये शिप 10 स्टोरीज पर बना हुआ है, जिसमें तकरीबन 66,000 पैसेंजर्स और इनकी लगेज की गुंजाइश मौजूद है। बहरी जहाज जो सिर्फ सामान लाते और ले जाते हैं, इन्हें कार्गो शिप कहा जाता है। इस कार्गो जहाज में ना सिर्फ सामान बल्कि बड़े बड़े कंटेनर आ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, कार्गो ऑपरेट करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स भी इस जहाज के हिस्सों में शामिल हैं, जिसकी मदद से कंटेनर्स को लोड और अनलोड किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप का नाम OOCL हांगकांग है, जिसकी लंबाई तकरीबन 400 मीटर है और ये शिप 21,000 कंटेनर ले जा सकता है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, जहाज के इस्तेमाल की भी एक लाइफ होती है। साफ पानी के जहाज की लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि वो आसानी से खराब नहीं होते, जबकि समंदरी जहाज जल्दी खराब हो जाते हैं। ज्यादातर जो समंदरी कार्गो जहाज होते हैं उनकी लाइफ तकरीबन 20 to 30 ईयर्स तक होती है, जबकि कश्ती जो कि लकड़ी या फाइबर गिलास से बनी हुई होती है उसकी लाइफ ज्यादा से तक चल जाती है, यानी उनकी लाइफ तकरीबन 30 to 40 ईयर्स तक होती है। जहाँ जहाँ समंदर बहता है वहाँ वो कश्तियाँ और बहरी जहाज भी चलते हैं, जो अपना मीलों का सफर तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, सिवाय एंटार्क्टिका के। दुनिया के हर बड़े आदम में जहाज और कश्तियाँ चलती रहती हैं, हमारे जिंदगी के कई मकासद को पूरा करती रहती हैं, और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हम इसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? अब मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने अपने सेगमेंट के अंदर कश्ती के बारे में बहुत मुफीद मालूमात हासिल की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी, और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद आयात और किसी नेमत के जिक्र के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुनान।
ایک حرف قرآن جو پڑھے کیسا ہے اجر سنا. ایک حرف قرآن جو پڑھے ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.